Hey Serie A fans, there is a very special news for you all. As you know that Serie A is one of the most followed leagues in world football and nobody brings you closer to Serie A than one football. Now you will be able to purchase the digital video moments of all the iconic moments that happen in Serie A, the Coppa Italia and the Supercoppa Italiana. This is incredible. So if you're fans of, let's say, Juventus or Roma and you want to collect and purchase and own the goals scored by Paulo Dybala or Dusan Vlahovic, you can actually own them. And now, since you own them, you can trade them, you can recollect, and you can do n number of things once you have that moment. So what you're waiting for? Hit the link in description and get your digital video moments of the most iconic moments in the Serie A right now. हे गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहे हैं, काफ़ी सारे मैचेस हमने ऑलरेडी देखे हैं नेशंस लीग के होते हुए, और हमने साउथ अमेरिकन टीम्स के भी काफ़ी सारे मैचेस देखे हैं। आज का वीडियो है टू डिस्कस अबाउट द स्क्वाड ऑफ ब्राज़ील एंड काफ़ी सारे कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमें आपसे डिस्कस करना है। तो फॉर दैट वी हैव शामिक भाई और यस। शामिक भाई, हाउ आर यू? I'm good. Great to be in Goa, man. या राइट, दिस हैज़ बीन शॉट फ्रॉम गोवा एंड राइट नाउ हम अगुआड़ा फोर्ट के पास है। सीन ये है कि यार देखो, हमने कल काफ़ी सारे मैचेस देखे शामिक भाई। अर्जेंटीना प्लेड अगेंस्ट हॉन्डुरस, आई थिंक 2 गोल लियोनेल मेसी ने मारा। And that purple jersey, man, amazing. Oh yeah, purple jersey with that Copa America wala winner. The only Real Madrid looking jersey Messi would be in, I think. No, we don't relate to that. But it was a killer jersey and a killer performance from Argentina. फ्रांस ने भी अपना गेम जीता। किलियन एम्बापे कहते हैं कि he feels at much more freedom playing at France than at PSG। तो हरामखोर इतने पैसे लेके क्या कर रहा है वो? काम नहीं मतलब मुझे मेरा खून खोलता है, तुमको पता है भाई, मेरा खून खोलता है कि जब इस तरह की हरामखोरी होती है। एनीवेज, डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं नहीं कर ही लेते हैं डिसरिस्पेक्ट की बात अगर यहाँ पे हो रही है तो। शामिक भाई, 5 मैचेस में 0 विंस ऑफ इंग्लैंड नेशनल टीम। 450 मिनट्स ओपन प्ले गोल नहीं आया है, 1 गोल उन्होंने मारा है, दैट हैज़ कम थ्रू अ पेनल्टी। लास्ट गेम उन्होंने हारा इटली के अगेंस्ट, रास्पादोरी का गोल था एंड दैट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस। एंड बट व्हाई डिड द कमेंटेटर्स कीप ऑन प्रेजिंग देम लाइक शिट? I think English media, English bias, English players. बहुत कल अगेन दे हैड अ लॉट ऑफ पोजेशन, दे आर प्लेइंग विद द बॉल, बट अगेन वो फाइनल थर्ड का जो है ना लिंकअप, एंड वी हर्ड देम सेइंग कि डिफेंस अच्छा है, जूड बेलिंगम वाज अ स्टार प्लेयर ऑन द पिच, and we Maguire has improved. Maguire has improved drastically. The person who is making the bench, फोर्डन की चड्डी पिंक है। got that one right. But we are seeing यार इंग्लैंड का स्क्वाड अभी, ही गैरेथ साउथगेट नीड्स टू चेंज समथिंग, बिकॉज अगर इस स्क्वाड से इफ ही डज नॉट परफॉर्म वेल, भाई अगेन यू आर मिसिंग another opportunity with this golden generation. Shaq bhai, how many games do you need to know that your system is not working? I think he should have known it by now. I don't think there should be any more games given to him. He should change the system now. He has to. What do you mean by changing the system? Is it like going in a back 3 जो कि वो usually खेलते हैं, back 4 भी खेलते हैं? Bellingham started with Declan Rice in the midfield, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने कहा था फिल फोर्डन खेलेगा, हरामखोर अच्छे फॉर्म में है। I also said एरिक डायर टीम है, एरिक डायर खेलने वाला है एंड काइल वॉकर राइट बैक पे खेलेंगे। आपने देखा रीस जेम्स है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, ट्रेंट बेंच पे बैठे हैं, रीस जेम्स खेल लेते हैं। एंड दे कॉल मी अ मैडमैन व्हेन आई सेड आई विल पिक रीस जेम्स ओवर ट्रेंट। And they are playing Kyle Walker as a left back. Nick Pope, He's doing well. He's playing well. I think काफ़ी सारी चीज़ें, if you look with the England squad right now, they are not comfortable with the starting 11. अभी he has not even arrived at his starting 11 as of yet. हम लोग हर एक गेम में देख रहे होते हैं कि 8-7 नंबर की जर्सी कोई नया ही बंदा पहन रहा होता है। शायद हेंडरसन केम इन एट द वेरी लास्ट मिनट बिकॉज ही गॉट मतलब फिट हो गए थे बंदे, तो वो ज्वाइन कर लिए थे टीम को। बट ठीक है, इनफ ऑफ इंग्लैंड, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, तुम देख सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट ब्राज़ील, यहाँ पे कल का गेम था उनका अगेंस्ट घाना, 3-0 विन। रिचार्लिसन की ब्रेस थी और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे ब्राज़ील की। दे आर लुकिंग एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट हेयर इन द वर्ल्ड कप। शामिक भाई, डोंट यू थिंक दे आर द फेवरेट्स? Absolutely, one of the favorites, definitely one of the scariest looking squads, which is I think 97% complete. 97% complete, like why did you leave out that 3%? I don't know, man. I think फ़ोन आया बंदी का। बंदी नहीं, तुम्हारा मैसेज आ रहा है भाई, अब रिसीव हुआ है, नेट स्लो चल रहा है थोड़ा यहाँ पे। राइट बैक पोजीशन अभी भी थोड़ा सा, अभी मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, इट इज स्टिल द मिसिंग पीस फॉर देम। What would make you feel like Brazil are 100% ready? Like right back position की वजह से they are not ready?
मतलब या देखो यार, लाइफ बॉय का साबुन ही है, 99.99% तक ही जाएगा, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगेन जिस हिसाब से दे हैव द डेप्थ एट ईच एंड एवरी पोजीशन, द सोर्सेस टीटे हैज़ राइट नाउ, टाइट टीटे जो भी मतलब, उसके बाद अभी सॉरी चौक गई चमेली एंड फ्रेंड्स। सफ़ेदी टाइड। तो जो अभी अपने पास उनके पास स्क्वाड है अभी, ही शुड बी एटलीस्ट राइट बैक में, मेरे ख्याल से ही शुड हैव अनदर गाय। एडम मिलिटाओ खेल सकता है, खेलता था, अब नहीं खेलते देखा भाई उसको बढ़िया गेम खेलते मैंने सेंटर बैक पोजीशन पे देखा है, जो कि रियल मैड्रिड पे धुआं उड़ा रहा है। डैनी एल्वेस का आप नाम ले रहे थे अभी शूट से थोड़ी देर पहले, व्हाट अबाउट हिम? मेरे ख्याल से यार ऐसे सिचुएशंस में मेंटालिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ऐसा एक आप ऐसे टूर्नामेंट में लेके जा रहे हैं जहाँ में मेंटालिटी भाई मैटर। वर्ल्ड कप इज इनफ, वर्ल्ड कप इज इनफ ऑफ अ मेंटालिटी बूस्टर फॉर देम। भाई आप वर्ल्ड कप में खेलो हराम कर, देयर शुडंट बी एनी एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द मेंटालिटी। हाँ ठीक है, आपके यंग प्लेयर्स हैं, उनको आपको पिच पे बूस्ट अप करना है, लाइक यू नो कि यंग प्लेयर्स थोड़ा सा मतलब बॉल को आस्क नहीं करते हैं, दे नीड देयर सीनियर प्लेयर्स टू फाइंड देम, हेल्प देम, ठीक है। तो फॉर दैट यू कुड से कि डैनियल एल्वेस कुड बी अ वेरी गुड थिंग। बट तुमको पता है क्या, हम अपनी टीम में देख रहे हैं कि हमारे पास राइट बैक कौन खेला कल के मैच में, एडर मिलिटाओ खेले थे, ठीक है, और हमारे पास राइट बैक के नाम पे और कौन है, डेनिलो, ठीक है, डेनिलो, और कोई ऐसा प्रॉपर, हाँ प्रॉपर कोई ऐसा राइट बैक नहीं आना। डोंट इवन लाइक डेनिलो। बेसिकली पिछले मैचेस में होता क्या था, अलेक्सांड्रो खेलते लेफ्ट बैक एंड डेनिलो खेलते थे राइट बैक। आई डोंट लाइक बोथ ऑफ दीज गाइज, ठीक है। डिफेंसिवली सॉलिड यस, ठीक है, बट देन व्हेन यू लुक एट द ब्राजील नेशनल टीम, यू वांट देम टू बी well adept at all prospects of a football game. If you are a right back, left back, you are defending, you need to be contributing and attacking, and Alexandro and Danilo दोनों का गेम उस हिसाब का नहीं है। एंड दे थोड़ा सा ना मैनचेस्टर सिटी एस थोड़ा सा ब्राज़ील खेलती है, थोड़ा सा हैवी मेटल भी रहता है, लेकिन दे आर काम व्हेन यू नो दे गेट अटैक्ड। काफ़ी इनका जो अभी हम लोग देखते हैं जैसे डेनिलो और अलेक्सांड्रो, बट अगेन आई डोंट वांट देम टू बीट दिस, वो उनको फायर लेके जाना ही पड़ेगा। तो by fire what do you mean? Like let's have another right back, beat anyone, beat Daniel Alves or beat the other guys that they have left out. So should I they would want them. You would want them, right? I would want them. मेरा ओपिनियन है कि right now they have played Eder Militao as a right back and he did had a very good game. I think Eder Militao क्योंकि initially started off at Porto as a right back and he has got the pace, he can run with the ball, he can carry the ball. हमने मड्रिड पे उसको देखा है कि जब मड्रिड स्प्रेड करती है ना अपने राइट सेंटर बैक को राइट पे, and he goes often wide forward जब पीछे उनका एक मिडफील्डर टक इन करता है, तो he has the ability to carry the ball forward, and वो मुझे राइट का सिलसिला खराब तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट येस आई वुड अग्री टू अ सर्टेन लेवल की डेप्थ कैन बी इंप्रूव्ड, और क्योंकि वर्ल्ड कप में 26 मैन स्क्वाड है तो वो कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्लेयर्स दैट दे लेफ्ट आउट? द थ्री गैब्रियल्स हैव बीन आउट ऑफ दिस स्क्वाड, गैब्रियल मैगलहाइस, गैब्रियल हेसुस, और कौन गैब्रियल है? मार्टिनेली, यस। तो आर्सेनल के तीनों गैब्रियल्स have been left out. Sharma, what's your opinion upon this? And these three guys have been in very good form. Yeah, I think the biggest miss for me would be Gabriel Jesus. Not just because of the fact, एक थोड़ा सा एक ना थोड़ा वो रहता है कि पिछला जब इंटरनेशनल रन आपका अच्छा नहीं रहा, आपने 3 साल से गोल नहीं मारा था, आपने रिसेंटली एक मेरे ख्याल से रिसेंट फिक्सचर में एक गोल पड़ा था, ठीक है। And he is in his best of his form of his career right now. And at Arsenal right now, he is in the peak of his career. Link up play हुआ, being the centre forward, being the proper number 9 play. अब भी अगर आप उसको आपने अगर उसको चांस नहीं दिया, you are missing out on something. And it is not, मेरे लिए mentality again matters a lot. फिर if you are not picking up in these little games to him, it will somewhere hurt his sentiments, his mentality. Yeah, same goes for Gabriel Martinelli as well. But पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ब्राजील They have better wingers in those places. So you would feel कि Martinelli should be left out. If he is left out, I would be okay with it. I'm not very much comfortable, but ठीक है, मतलब I can work with it, क्योंकि अभी उनके पास ऑलरेडी अभी तक मेरे ख्याल से ब्राज़ील के पास विंगर अगर डुओ देखा जाए, they are the best team which has winger combinations. Absolutely. Yeah, Rafinha है उनके पास, but the biggest, the best wingers out there, Vinicius Junior and Rodrigo, both of them are here. Anthony they also have on the bench as well. Last match में Rafinha and Vinicius Junior started and Richarlison also started as a striker. तो Richarlison ने 2 गोल मारे. What do you think about Richarlison? देखिए Matthias Cunha स्क्वाड में है, बट Richarlison खेले हैं. आई डोंट नो कि मैथाइस कूनिया को स्क्वाड में लेने का रीज़न क्या था ओवर गैब्रियल हेसुस. मार्टिनेली एंड गैब्रियल मैगलहाइस के लिए मैं स्टिल आई कैन टर्न अ ब्लाइंड आई, क्योंकि अगर डिफेंस की बात करो तो आपके पास इबानियस है फ्रॉम रोमा, और आपके पास ब्रेमर है फ्रॉम जुवेंटस, एंड 2 डिफेंडर थियागो सिल्वा, मार्किनियोस. आई थिंक वी आर सेट इन दैट मेंटालिटी और इवन इन दैट डिफेंसिव डिपार्टमेंट. और एक जगह पे 12 डिफेंडर ले जा रहा है गैरेथ साउथगेट, और 4 डिफेंडर्स में यहाँ पे प्रॉपर सेंटर बैक्स में इन्होंने खेल खत्म कर दिया. डेफिनेटली. और अगर आप देखो तो
all these 4 center backs are starters in their respective teams. Absolutely. ब्राजील के सारे प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास जो लाइनअप हैं वो दे आर ऑल स्टार्टर्स in their respective team, right? मतलब आप नाम थोड़ा देखोगे तो आप कहोगे पेड्रो, ये कौन बंदा है, ये नया, ही इज़ अ 25-year-old kid जो अभी फ्लेमिंगोज में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद फ्लेमिंगोज का बंदा है, and he has a terrific season and he got the nod. That is why I'm saying if he got the nod, why not Jesus, right? did TD commit an error not selecting Gabriel Jesus? Like क्या आप offended है कि Jesus नहीं आया? Definitely I'm offended, but आखिर में what matters is the 3-0 victory, right? That matters, but Shamik bhai, we are over here talking about this team of Brazil because right, अगला हमारा साइड भाई मेजर टूर्नामेंट क्या है? वर्ल्ड कप है. So probably whatever the players who have been selected in the last friendlies that will happen before the World Cup, वही 80-90% per team जाने वाले हैं वर्ल्ड कप में with some minor changes. एब्सोल्युटली. और इसी चीज़ को लेकर जो 80-90% जो आप इम्प्रूवमेंट देखना चाह रहे हो सकता है अभी ट्यूनीशिया के साथ उनका अगला मैच है, पता नहीं, शायद इफ ही गेट्स अ नॉट अहेड, मे बी, हो सकता है. लेट्स सी. Yeah, but we haven't talked about the players like Coutinho who haven't been selected. So do you think Coutinho का आना यहाँ पे बनता है, or else it is Lucas Paqueta will be able to hold that job? Because आप देखो टीम में यहाँ पे they have got Everton, Fred, Fabinho भी हैं यहाँ पे, Bruno Guimaraes हैं यहाँ पे, और Rodrigo, yes, इनके बारे में बात कर ली हमने. तो yeah, Paqueta will be able to do the job, and Neymar. Absolutely. Abhi Coutinho, I think again he was very playing initially well at Aston Villa, but again right now I have not seen him playing that level to be picked up ahead of these guys. Lucas Paqueta at West Ham has been balling. Abhi he joined from a team जो अभी अचानक से आके लियोन से था, I think लियोन से आया, and he just fell right in. West Ham now look like another dimension. उसके बाद वो तो वेस्ट हैम तो हाँ, बट सीन इज मे बी समथिंग आर नॉट क्लिकिंग फॉर देम, और आई डोंट नो व्हाट, बट दे आर डूइंग वेरी वेरी पुअरली. इवन दो पक्वेटा की साइनिंग हुई है, स्कमासा की साइनिंग हुई है, बट वेस्ट हैम आर फ्लोड डाउन मैन. बट राइट नाउ Coutinho हैज बीन लेफ्ट आउट. सो आप, बिकॉज आई ओनली टॉक अबाउट Coutinho बिकॉज आप लोग कमेंट में पूछने वाले थे भैया Coutinho का क्या, तो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट हिम, बट आई डोंट सी इफ हिज फॉर्म लाइक दिस कंटिन्यूज. Probably injuries and everything would create a big problem for his selection into the World Cup. Paqueta is definitely going to be here, but their sole creator in the team is Neymar मेरे भाई, because Neymar has been balling यार. इस साल Neymar, शामिक भाई, मुझे लग रहा है कि वही जो 2014-15 वाले बारसा वाला Neymar हमने देखा था, he is back, and वो बंदा हर मैच में probably assist goal कर ही जा रहा है. What do you think about him? Absolutely, just he needs to keep away himself from all the shitty things that are being talked around him. मतलब कि फ्लैम्बॉयंस और जो भी किलियन एम्बापे जो सारी बातें चल रही होती हैं PSG को लेकर, उन सब चीज़ों से दूर रहा है. आई थिंक ही इज़ हैविंग अ गुड अमेजिंग सीजन राइट नाउ. इंजरी फ्री रहना भाई, तो हम लोग को चाहिए. वील बी देयर डेफिनेटली. Talking about injuries, oh भाई, Koundé injured, Araujo injured, Depay injured, Memphis Depay, और भाई De Jong injured. अरे हरामखोर, मतलब शामिक भाई मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल ब्रेक चूतिया पाया यार. देखो, या तो इसको प्रॉपरली कहीं प्री सीजन में सेट करो, 1 महीना दे दो शामिक भाई, स्टार्टिंग में दे दो यार 1 महीना कि भाई ले तू खेल. और भाई वर्ल्ड कप था ना, वर्ल्ड कप के लिए तुमने 1-2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 10-15 दिन दिए हैं तुमने वहाँ पे फ्री टाइम. आई थिंक 1.5 हफ्ते भी नहीं शामिक भाई, और कम है, ठीक है. तो ये सारी इंजरीज हो रही हैं प्लेयर्स को, जस्ट लाइक क्रूशल मंथ अपकमिंग है यहाँ पे. एल क्लासिको एंड ऑल आ रहे हैं, इंटर और ये सब वाली गेम खेलेगी बार्सिलोना, एंड वहाँ पे यू हैव गॉट मेजॉरिटी ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड. सो आर यू अ बिग फैन ऑफ दीज इंटरनेशनल ब्रेक्स? No, I'm not. बिल्कुल भी नहीं इंटरनेशनल ब्रेक्स. बट फिर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, यू हैव टू प्लान समहाउ द ऑफिशियल. वर्ल्ड कप से पहले 1 महीना दे दो यार, लीग थोड़ा पहले स्टार्ट कर लो. खासकर इस साल की मैं बात करूँ अगर, देयर वाज नो पॉइंट. बट स्टिल यू हैव टू गेट दोज लीग्स डन एंड डस्टेड ना, मतलब वही चीज़ है. डस्टेड कराओ, पहले स्टार्ट कर लो यार, खत्म. ऑफिशियल्स शुड हैव गॉटन टुगेदर. बात करनी चाहिए थी कि हाउ कैन वी मेक दिस इफेक्टिव फॉर आवर प्लेयर्स. बट अगेन जो एक क्वेश्चन जो हमारे अक्सर मैनेजर्स कहते रहते हैं, व्हाट दी फेडरेशंस थिंक दैट दीज प्लेयर्स आर जस्ट मशीन्स. चाबी भरो, खिलाओ. चाबी क्या है? पैसा. भाई ये तो केविन, मैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई नेशंस लीग का क्या, नेशंस लीग का, मेरा सही बता रहा हूँ, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन नेशंस लीग का यही है कि भाई कुछ नहीं है यार मेरे लिए. सीरियसली इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंडली गेम. मैं उसको देखता हूँ बिकॉज बड़ी टीम खेल रही है यार, सही है. क्योंकि केविन डे ब्रुयने क्या बोलता है, सेम थिंग भाई, यूएफए के लिए मनी मेकिंग बिजनेस है, यहाँ पे दे आर मेकिंग द प्लेयर्स प्ले गेम्स आफ्टर गेम्स. और अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है, एंड नॉट इवन दिस यार. यूजुअली हमने देखा है कि हर साल जब फुटबॉल स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स अ ब्रेक, प्लेयर्स जाते हैं
एंड देन वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक्स में उनको चोटें लगती हैं, पूरा टीम का क्लब का फॉर्म खराब होता है. आई एम नॉट इम्प्लाइंग शामिक भाई यहाँ पे कि क्लब इंपॉर्टेंट है आपके नेशन से, आप मत खेलो, मत फोकस करो, बट इट्स लाइक अननेसेसरी मुझे एडिशन बीच में लगता है. लॉट ऑफ ट्रैवल, लॉट ऑफ जेट लैग्स एंड फटीग. व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्लेयर के इंपॉर्टेंस देखो, मतलब प्लेयर के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि अगर इफ़ आई एम फ्रैंकी डी यॉन्ग एंड आई एम थिंकिंग भाई कि आई हैव टू बी देयर, मतलब वन ऑफ द रीसेंट स्केयर का एग्जांपल ले लो, रॉयस, ठीक है, मार्को रॉयस के साथ क्या हुआ था, वी वर ऑल स्केर्ड कि भाई ही इज़ गोना मिस द वर्ल्ड कप, ठीक है, इंजरी हुई, स्ट्रेचर पे क्या बनता है, एवरीवन थॉट कि भाई अब तो वर्ल्ड कप ओवर, अगेन अनलकी सीजन कंटिन्यूज. तो वही है फ्रैंकी डी यॉन्ग, इफ आई एम फ्रैंकी डी यॉन्ग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आई हैव टू प्ले इन दैट वर्ल्ड कप, आई एम 25-26 ईयर्स ओल्ड, मेरे पास ज़्यादा चांसेस है भी नहीं खेलने के, सो आई शुडंट बी मिसिंग दिस, ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी भी अगर निगल भी होता है तो शायद ये हो जाता है कि भाई मुझे छोड़ दो, आई हैव टू गो. हाँ, पॉसिबली वो एक प्रिकॉशन की तरीके से रख देते होंगे, क्योंकि आपने देखा कि फ्रैंकी हैज रिटर्न्ड एक वीक में ही आ गए वो. खूंडे वैसे कंफर्म हो चुका है, हैमस्ट्रिंग है, 4 वीक के लिए आउट है. पता है इम्पैक्ट जब आपके पैरों पे ना शामिक भाई लोड्स डिफरेंट वे में पड़ने लगते हैं ना, तो फिर दिक्कत होती है. This I got to know from a physio that I was talking to. He said, मैंने वही पूछा कि यार प्लेयर्स कंटिन्यूसली खेलते रहते 1-1.5 महीना एंड दे हैव गॉट नो इंजरीज, नो प्रॉब्लम्स, एंड देन फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ गैप आता है, एंड देन उसके बाद दे गो आउट एंड प्ले एट सम अदर प्लेसेस. ही सेड कि यार सबसे पहली बात तो ग्राउंड में चेंज आता है, ग्राउंड की हार्डनेस लेवल्स में चेंज आता है, वहाँ पे पैर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है, लोड पड़ता है, एंड जो फ्रीक्वेंसी उस लोड की वो बहुत चेंज होती है, एंड ये सारी चीज़ें मैटर करती है जिसकी वजह से आपको इंजरीज होती हैं. सो दैट्स द थिंग, एंड हियर इज़ द टोटल वीडियो फॉर यू गाइस. एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने आज बात किया, डिस्कस किया. आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया. तो हम यहाँ पे अभी एक्चुअली गोवा में हैं, गोवाड़ा फोर्ट के पास हैं. हम थोड़ा अर्ली आ गए थे हराम को, तो हमको ये वीडियो शूट करनी था तो हमने यहाँ पे आया नहीं था, बुलाया गया है, आया भाई कोई नहीं था. अयान पीछे कैमरा के हंस रहा है, कह रहा है बुलाया गया है. सुबह सवेरे उठा के आकिब भाई नहीं अपने साथ आए नहीं, सी बात भाई आए नहीं. देख लो उधर, देखो कार हमारी वहाँ पे. आकिब भाई कहाँ है? आकिब नहीं है तो जेल में, अगवाड़ा जेल में प्रोबेबली. आकिब भाई वहाँ वो देखो गाइस, उधर देखो, लुक एट दैट. सो गाइस डू नॉट माइंड, हम थोड़ा सा व्लॉग वाले सेंस में है, इसलिए वीडियो लंबा गया, इसलिए डिस्कशन अच्छी हुई, और थोड़ा सा शायद मूड में फ्लो में बह जाते हैं यार, ऐसा कह सकते हो. तो चलो चलते हैं यार, अब टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो हम एंटर करने वाले हैं गोवाड़ा फोर्ट में. और आप भैया शामिक भाई कुत्ते से भयंकर डरते हैं, भागो भाई. व्यू बहुत प्यारा है यार, यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा है गोवा का. भाई साहब ये तो घोड़ों जैसे दौड़ रहे हैं यार, अयान भाई घोड़े से दौड़ते हैं यार. कुत्ते भगा रहे हैं, कुत्ते भगा रहे भाई, नेक्स्ट लेवल यार. शामिक भाई भैंस की आँख, भैंसों की आंखें, शायद भाई गाय हैं वो. अच्छा गायों की आंखें. चलिए ठीक है गाइस, इधर लेट्स गो. वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना. लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टॉक्ड. एंड अब चलते हैं थोड़ा सा फन मजे मस्ती करते हैं, एंड बीच पे ढिंचक करते हैं. पूजा नहीं ढिंचक. बाय बाय, पीस आउट.